بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے خاص وظیفے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں اعتکاف کے بارے میں۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کرنے والوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف کرنا یعنی سنت طریقہ اعتکاف کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتائیں گے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے اعتکاف کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اعتکاف کرنے سے پہلے آپ ایک تسبیح پڑھیں گے۔ وہ تسبیح جو دل سے پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اعتکاف میں ہر وہ حاجت پوری کرے گا جو اللہ سے مانگے گا۔ یعنی وہ اگر اعتکاف میں اللہ تعالیٰ سے عبادت کے دوران کوئی بھی چیز مانگے، اللہ سے سوال کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے اعتکاف والے دنوں میں جو بھی دعا مانگے گا، اللہ اس دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ وہ قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے اس ایک آیت کی ایک تسبیح کر لے تو اس شخص کا اعتکاف اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگا، اور وہ اعتکاف کی حالت میں جو بھی مانگے گا اللہ اسے ضرور عطا فرمائیں گے۔ اگر وہ دولت مانگے گا تو اللہ اسے مالدار بنا دیں گے، اگر وہ بیماری سے شفا مانگے گا تو اللہ اسے صحت والی زندگی عطا فرما دیں گے، اگر وہ بے اولاد ہے تو اللہ اس کو نیک اور صالحہ پاک باز اولاد عطا فرمائے گا، اگر وہ بے روزگار ہے تو اللہ اس کے لیے حلال اور بہتر روزگار میسر کر دے گا۔ صرف اسے اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کی ایک تسبیح کرنا ہوگی تو اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ جس وقت سے وہ اعتکاف پہ بیٹھے گا سمجھو اس کے لیے قبولیت کا وقت شروع ہو گیا، اور اعتکاف پر اٹھنے سے پہلے یعنی 10 دن کا اگر وہ اعتکاف کرے گا، اگر وہ جتنے بھی دن کا اعتکاف کرے تو اعتکاف میں کی جانے والی ہر دعا، ہر حاجت اس کی پوری ہوگی۔ پیارے ناظرین، تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اعتکاف پر بیٹھنے والوں کی فضیلت، یعنی جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ ان کے بارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعتکاف کے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں، آپ ان کو ان تمام مسائل کا حل اس ویڈیو میں ضرور ملے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور سننا ہوگا۔ نفسی اعتکاف ان عبادت میں سے ایک ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے بیت اللہ پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے 2 برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور رمضان کی آخر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ حضرت امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشگی فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنت کی دلیل ہے۔ 20 اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے،
दुनिया से मुंह मोड़ना और रहमत खुदाबंदी की तरफ मतवज्जो होना और मगफरत बारी ताला की हिरस करना है। और मुतकिफ की मिसाल ऐसे बयान फरमाई गई है, गोया कोई शख्स किसी के दर पर आकर पड़ जाए कि जब तक मकसूद हासिल ना होगा उस वक्त तक नहीं लौटूंगा। मुतकिफ अल्लाह के दर पर आकर पड़ जाता है कि जब तक रब की रजा और मगफरत का परवाना नहीं मिल जाता वो नहीं जाएगा। ऐसे में अल्लाह की रजा मगफरत के कुव्वी उम्मीद बल्कि उसकी फजल से यकीन रखना चाहिए। चुनाचे अहादीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज़ अमल इस तरह बयान किया गया है। सही अल बुखारी। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ करते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी 10 दिनों का इत्काफ किया करते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आपको वफात दे दी। सही बुखारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन इत्काफ करते थे, लेकिन जो आपकी वफात का साल था तो आपने 20 दिन इत्काफ फरमाया। उलमा ने लिखा है कि आपने 20 दिन का इत्काफ इसलिए फरमाया था कि आपको मुनकशिफ किया गया था कि ये आपका आखिरी रमज़ान है। आपने चाहा कि अमाले खैर में कसरत की जाए ताकि उम्मत को अमल खैर में जिद्दोजहद करना जाहिर हो जाए। और बाज़ ने कहा कि ये 20 दिन का इत्काफ इसलिए था कि आपने इससे पहले साल रमज़ान में सफ़र हो जाने की बना पर इत्काफ नहीं किया था, इसलिए पिछले साल इत्काफ ना कर सकने की तलाफी करने के लिए इस साल 20 दिन का इत्काफ फरमाया। बहरहाल इससे मालूम हुआ कि इत्काफ का अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में कितनी बड़ी फजीलत वाला और अहम अमल था। चुनाचे इत्काफ के फज़ाइल में बहुत सी अहादीस वारद हुई हैं। ज़ैल में कुछ नकल की जाती हैं। सही अल बुखारी। हज़रत अबू सईद खदरी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान और मुबारक के पहले अशरे में इत्काफ फरमाया और फिर दूसरे अशरे में भी। फिर तुर्की खैमा से जिसमें इत्काफ फरमा रहे थे सर बाहर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे का इत्काफ शब कदर की तलाश और इख्तिमाम की वजह से किया था, फिर इसी की वजह से दूसरे अशरे में किया। फिर मुझे किसी बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरा में है, लिहाजा जो लोग मेरे साथ इत्काफ कर रहे हैं वो आखिर अशरे का भी इत्काफ करें। मुझे ये राह दखला दी गई थी, फिर बुला दी गई। उसकी अलामत ये हैं कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद की सुबह में गीली मिट्टी में सजदा करते देखा, लिहाजा अब इसको आखिर अशा की ताक रातों में तलाश करो। रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपके और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर कीचड़ का असर 21वीं की सुबह को देखा। मालूम हुआ कि इत्काफ की इबादत के जरिए शब कदर का हसूल मतवक्को है। सुनन अबी इब्ने माजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुतकीफ गुनाहों से महफूज रहता है और उसके लिए नेकियां इतनी ही लिखी जाती हैं जितनी कि करने वालों के लिए। इस हदीस में इत्काफ करने वाले के लिए इतनी नेकियों की बशारत सुनाई गई है जितनी कि करने वाले के लिए। इसका मतलब ये है कि इत्काफ करने वाला इत्काफ की वजह से बास नेक अमाल नहीं कर सकता। मसलन मरीज की अयादत, जनाजे में शिरकत वगैरह। जनाजे में शिरकत करने वाला वगैरह ऐसे अमल के बारे में कहा गया है कि इत्काफ करने वाला अगरचे अमल नहीं करता
और उसको इतना ही सवाब दिया जाता है जितना कि करने वालों को दिया जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो शख्स अपने भाई के किसी काम में चले फिरे और कोशिश करे उसके लिए 10 बरस के इत्काफ से अफजल है, और जो शख्स एक दिन का इत्काफ भी अल्लाह की रज़ा के वास्ते करता है तो हक ताला शानुहु उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें आड़ फरमा देते हैं जिनकी मसाफत आसमान और ज़मीन की मसाफत से भी ज़्यादा चौड़ी है। प्यारे नाजरीन, अब बात करते हैं औरत के इत्काफ के बारे में। औरत के इत्काफ का तरीका क्या है और नीयत क्या करनी होती है। औरतों के लिए भी इत्काफ करना सुन्नत है और सवाब का बाइस है। औरतों के लिए शरई हुक्म ये है कि औरतें अपने घर की मस्जिद में इत्काफ करें, यही उनके लिए बेहतर है। और घर की मस्जिद से मुराद वो जगह है जिसे घर में नमाज, तलावत और दीगर इबादत के लिए मुतय्यन कर लिया गया है। अगर घर में इबादत के लिए पहले से खास जगह मुतय्यन नहीं है तो इत्काफ के लिए घर के किसी कोने या खास हिस्से में चादर या बिस्तर वगैरह डालकर एक जगह मुख्तिस कर ली जाए, फिर उस जगह इत्काफ किया जाए। और औरतों के लिए घर की मस्जिद बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह मर्दों के लिए मस्जिद का हुक्म है। इत्काफ की हालत में तबई और शरई ज़रूरत के बगैर वहाँ से बाहर निकलना दुरुस्त नहीं होगा। औरत इत्काफ की जगह से बाहर खाने पकाने या घर के काम काज के लिए नहीं निकल सकती, इससे इत्काफ टूट जाएगा। अगर उसको बाहर से उसके अपने लिए कोई खाना लाकर देने वाला नहीं है तो ये बाहर खाना उठाने के लिए जा सकती है। खाना उठाकर फौरन अंदर आ जाए, बाहर ना रुके वरना इत्काफ फासिद हो जाएगा। अलबत्ता औरत अपनी इत्काफ गाह के अंदर रहकर घर के काम काज मसलन आटा गूंदना, खाना पकाना, कपड़े धोना वगैरह सर अंजाम दे सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि इत्काफ में बैठने से पहले इन कामों के लिए कोई मुतबादिल इंतजाम कर ले ताकि पूरी यकसुई के साथ ये इबादत अपनी रूह और मकसद के साथ अदा हो जाए। इत्काफ की नीयत यही है कि इत्काफ के इरादे से इबादत के लिए मखसूस जगह 10 दिन के लिए बैठ जाए और ज़बान से ये कह दिया जाए कि मैं 10 दिन के मसनून इत्काफ की नीयत करती हूँ, तो ये बेहतर है। प्यारे नाजरीन, मर्द हो या औरत, इत्काफ पर बैठने से पहले तो यानी इत्काफ करने से पहले असर की नमाज पढ़कर एक तस्बीह कुरान पाक की इस आयत की पढ़ ले और दुआ मांग ले। ये आयत सूरत आल इमरान 73 और 74 है। अव्वल आखिर दुरूशी पढ़कर एक तस्बीह इन आयात की कर ले। वो आयात हैं इन्नल फज़ला बियदिल्लाहि युतीही मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। बेरहमातिही मन यशाउ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम। इन आयात की एक तस्बीह कर लें और फिर दरूद इब्राहीमी पढ़ लें और इत्काफ पर बैठने से पहले दुआ मांगना शुरू कर दें। अब इस बात का यकीन रखें कि अगर आप 10 दिन का इत्काफ कर रहे हैं या 7 दिन का या 3 दिन का, जितने भी दिन का आप इत्काफ कर रहे हैं, इस हालत में आप अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अगर आप इत्काफ पर बैठें तो हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला ना जाने किसकी दुआ सुन ले और अल्लाह हमें शैतान के शर से महफूज रखे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें इस मुक़द्दस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह तबारक ताला की रज़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और तमाम उम्मत मुसलमान